Hello and welcome everyone. During last few days, I felt that there was a query among some new investors, and that query was, Piyush bhai, what are my earnings? As a new investor, we should know what I am going to gain from my investments. So let us discuss today what are my earning and what can I expect from a different type of assets. So let us discuss your assets. Here are your assets. Fixed deposit. See, how should we interpret any type of investment? I invest 1 lakh in fixed deposit, I get 7% interest. You will say, Piyush bhai 7% नहीं है, 6.25% है, 6.4 PPF में इतना है, वो सब चीज जाने दो. I don't want to make things complicated. Just I have taken a round figure. You might argue, Piyush bhai टैक्स कटता है, अरे कमाएंगे तो थोड़ा टैक्स भरेंगे. अभी मुझे टैक्स का बात नहीं करना है. Again, I want to make the thing simple. क्या टॉपिक है? कितना मेरे को मिल रहा है. फिक्स डिपॉजिट आई इन्वेस्टेड ₹1 lakh. If 7% is interest, my earning at 7,000. It's as simple as that. So what is my yield? लाख डाला 7,000 आया, 7% is my yield. एकदम सिंपल. तो मेरे को 60% मिलता है. This is my yield. In the same way, here is the metal. If I invest 1 lakh in metal, get 8% appreciation. Here also you can fight with me, Piyush bhai, पिछले साल का इतना, इतने साल का इतना. छोड़ो ना वो सब. करीबन, see you what you should expect. Your metals are going to outperform inflation, right? So here you can see that if you are getting 8% appreciation, then your earnings are 8,000. लाख का सोना चांदी लिया हुआ है, आपको 8,000 रुपए का appreciation मिलता है. That is your yield. So in both the cases, either you are getting 7%, 8%, this is your yield, right? In the case of FD, you are getting either appreciation or you may opt for yearly interest. If you will get yearly interest, you will not get appreciation. In the case of gold, if you are holding proper any metal, you are going to get the appreciation and no yearly interest. Yeah, you can say, Piyush bhai, वो government का scheme में मिलता है. Yeah, you will get that 2.25% extra, so that's good. But this is what we can say. What is your yield? Your yield is around 8%. Simple है कि नहीं है? What is the yield on the property if I rent it? For example, I invested 1 lakh. You can argue, Piyush bhai 1 lakh में नहीं आता है property. अरे, just to simplify, I have put one figure. If I have invested 1 lakh and if I get 7% appreciation, that 7% is my yield. 60% अगर appreciate होता है अभी, आप फाइट कर सकते हो, पीयूष भाई मेरे सिटी में 4% हो रहा है, मेरे वहां पे तो 10% हो रहा है. Anything, but the appreciation which you get is your yield. So your earning, if you take 7% appreciation, your earning are 7,000. Plus, if you have put your property on rent, then you are getting rental income of 2% around. अब आपको 3% भी मिल सकता है, depend on rental, depend on commercial, depend on residential, whatever you have put. But what is your yield in this case? Appreciation plus your rental income, you may say that yeah, 9% is my yield. Got it? So in the previous two type of investment, what we saw, you get appreciation or you get interest credited in your bank every year. Here you get rental income every month, plus your property is going to appreciate, right? So what type of income you get on property on rent? Two types of income, appreciation as well as rent. In gold or in metal, appreciation. In fixed deposit, either appreciation or interest rate. What do you get in farmland? Right? If you are having a farmland, for example, again, you invested 1 lakh, farmland appreciation, for example, is it 4%? You can say, Piyush by 4% appreciate हो रहा है. And yes, you may get your farm produce earning. This might be around 4,000, 4%. तो आपको इधर भी 8% मिल रहा है, right? So here also you are getting two type of income, appreciation plus
lifelong income. Till your rental is in your property, you are going to get income. Till you are going to produce from your farmland, you are going to get income. तो asset बेचेंगे तब पैसा मिलता है ऐसा नहीं होता है. If assets को बेच के ही पैसा मिलता है, then that asset might not be the right asset. Right? Assets can give you regular income as well as appreciation. कितना simple है? Simple or not? Let us see some more type of income. Car rental. I invested 1 lakh. लाख में गाड़ी नहीं आती है, पता है. Example है. I invest 1 lakh. Get 15% depreciation. मेरा तो प्रॉपर्टी में तो प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता है. But in the terms of your cars or vehicle, what happens? Your vehicle gets depreciated. Around, if you say my vehicle depreciate 15% every year, तो आपका तो वैल्यू घट जाता है. शोरूम से निकल के ही आपका लाख का सीधा 85,000 तो वैसे ही हो जाता है. So this is your depreciated assets. Yeah, here you get rental income more, right? तो 25,000 आपको मिलता होगा, पर 25,000 मिलने के साथ आपका डेप्रिसिएशन भी आ रहा है. Again, your yield is around 10%. So here, what type of income you get? एक तो पैसा कम हो रहा है due to depreciation. Yes, rental income you are getting. High clear. से कितना simple है जानना what is my yield in different type of assets. So be high clear. We get 2 types of income from our assets. First is appreciation. Second is regular income. Right? Some may provide single, some may provide both, and some may provide depreciation. Simple ki nahi, right? So now, ask right questions. अगर हम अपने आप को गलत questions पूछेंगे तो हम गलत रास्ते पे जाएंगे. If we ask right questions, what question should we ask to ourselves while investing in any type of assets? What is the expected appreciation? मुझे कितना appreciation मिलने वाला है? ये जवाब मिले लिख लो उसको डायरी में. दूसरा क्वेश्चन, does it provide me regular income? That's also good. तीसरा क्वेश्चन, what about risk? अगर कोई कहता है मेरी कंपनी में डिपॉजिट भरो मैं तुमको 15% दूंगा, रिस्क होगा, उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं. ऑलवेज गुड रिटर्न आर नॉट गुड, राइट? वी शुड कंसीडर रिस्क विद एनी टाइप ऑफ गुड रिटर्न्स आल्सो. तो हमने 3 प्रश्न पूछे. व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन? ऐसा तो नहीं डेप्रिशिएट हो रहा है. डज इट प्रोवाइड मी रेगुलर इनकम? एंड व्हाट अबाउट रिस्क? अगर वो जहां पे एफडी डाला है कंपनी बंद हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है. सो थिंक अबाउट रिस्क, think about regular income and think about appreciation. This was the right question. फिर टैक्स की बारी आती है. अरे टैक्स कमाएंगे तो भरने ही वाले हैं ना, और भर भी कहाँ पे रहे? हमारे देश में भर रहे हैं, हमारी कंट्री में. तो वो पहली चीज नहीं है जहां पे हम सोचे. ज्यादातर लोग पहले टैक्स सोचते हैं, अरे बाप रे कितना टैक्स आएगा. अरे कमाओगे तो टैक्स भरने का है, राइट? लेकिन कमाओ तो सही. पहले हम कमाने के तो रास्ते ढूंढे, राइट? कमाने के रास्ते ढूंढने के बाद फिर टैक्स लेट अस कंसीडर. अब अगर मैं टैक्स इनपुट करूं तो मेरी इफेक्टिव यील्ड क्या रहती है? सो फर्स्ट थिंग वाज appreciation, regular income, risk, and then comes your tax. So these were some right questions which we need to ask to ourselves. Now what about equity? चलो इक्विटी में पैसा डालते. So what is equity? Equity is equity. It is not equality. इक्वलिटी में और इक्विटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है. और वो क्या है? यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट. आपके 100 में से 100 आए मैथ्स में, आपके दोस्त के 100 में से 50 आए. वो नहीं पढ़ रहा था, पर आपको बोला टीचर ने नहीं नहीं बेचारे के साथ अन्याय नहीं करने का, सबको जितना ही मिलना चाहिए. आपके 100 में से 20 उठा के वो 50 वाले को दे दिए. आपने पढ़ाई की थी, आपके मार्क हो गए 80, उसने पढ़ाई नहीं की थी, उसके मार्क हो गए 70. अभी भी मैच नहीं हुआ, 5 और हटा के इधर दे दो, दोनों के 75, खुश हो जाओ. जाओ बच्चों, यह है इक्वलिटी. क्या इक्वलिटी से कभी मोटिवेशन मिलता है? जी हाँ मिलता है. आपको मोटिवेशन मिला अगली बार मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि पढ़ाई करे कि नहीं करे इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है. और
आपके दोस्त जिसके 50 आई थी उसको भी मोटिवेशन मिला, क्या कहा मैं पढ़ के आने ही वाला है। दिस इज कॉल्ड एज इक्वालिटी। इक्विटी की दुनिया में इक्वालिटी नहीं होती है। इक्विटी इज अ प्योर इक्विटी। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक कंपनी है, एक कंपनी का मालिक है जिसने पैसा डाला हुआ है, वो पैसा डाल रहा है, ही इज डूइंग हार्ड वर्क टू टेक हिज कंपनी टू नेक्स्ट लेवल। उसने 10 रुपए में डाला हुआ है, आप 10 साल बाद निवेश करने आते हो, इक्वालिटी नहीं होगी। नहीं नहीं, बेचारा 10 साल बाद आ रहा है, एक ही भाव में दे दो, नो इक्वालिटी। 10 साल बाद आ रहे हो, 10 साल पहले किधर थे? जब मेरे को पैसे की जरूरत थी, जब मेरी कंपनी को पैसे की जरूरत थी, तब नहीं आए। जो लोग जरूरत के समय साथ में थे, सस्ता मिलता है। जो लोग सब अच्छा अच्छा होने के बाद आते हैं, उनको महंगा मिलता है। दिस इज द मैजिक ऑफ इक्विटी। इक्विटी में कमाल इसीलिए होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक कंपनी के बारे में मैं एग्जांपल देता हूं। आई होप दिस एग्जांपल विल क्लियर योर ऑल डाउट्स ऑन इक्विटी कि इक्विटी में क्या मिलता है। देयर वाज अ कंपनी इन 2005। In 2005, they were making sales of 74 crore and no profits. Company was established in around 2000. एक रेस्टोरेंट, दो रेस्टोरेंट, तीन रेस्टोरेंट। In 2005, they were having some restaurants. They were having 74 crore sales, but they were not making any money. स्टेक होल्डर ने तो 2000 से पैसा लगाया था, बेचारा 2005 आते आते उसने तो कुछ कमाया ही नहीं, राइट? नो प्रॉफिट्स। In 2010, they came with IPO. During that IPO, their sales was 424 crore. किसने वो सेल्स को 70 से 424 करोड़ ले गया? That promoter have worked hard, their employees have worked hard. So today their company is 424 crore and now they are making profit. अब जब प्रॉफिट है, सब आते, चलो मैं भी पैसा डालना चाहता हूँ, तुम्हारा धंधा अच्छा चल रहा है। At that time they came with IPO. They offered the price of 145. उन्होंने कितने में डाला था? 10 रुपया। वो आपसे कितना ले रहे हो? 145। बहुत लोग बोलते हैं 10 का 150 ले रहा है। अरे वो बेचारा 10 साल से मेहनत कर रहा है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। लॉस करता तो वो ही करने वाला था। कितना रिस्क लिया उसने, उसने एक लेवल पे लाए। तो 10 के 150 मांग रहा है, वो इक्वलिटी नहीं है, वो इक्विटी है, राइट? और ही डिजर्व इट। वी इन्वेस्टेड ड्यूरिंग 2010। Yes, you take this 145. I want to invest in your company because you deserve this 145. And I believe that if management is good, if this company would grow, I may make money. अब प्रमोटर ने तो 10 रुपए पे लिया हुआ है। 10 साल पहले पीयूष पटेल 10 साल बाद आए, 150 में मिला। But yeah, I deserve at 145. They were free and best in their industry. That was the reason I invested. What happened? Friends, no profits were distributed. I invested at 200 also. My earnings were only 5.54. Means मैंने 200 रुपया डाला एक शेयर में, वो एक शेयर की अर्निंग 5.54 थी। देखो कंपनी कितना कमाती थी उससे मेरे को लेना देना नहीं, कंपनी तो 1000 करोड़ करती होगी, राइट? लेकिन वो तो हम सब पार्टनर में बढ़ जाता है ना। मेरे हिस्से की अर्निंग क्या है? दिस इज कॉल्ड एज ईपीएस। कितना है? 5.54। सो व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, पीयूष पटेल ने 200 डाला, 5.54 मिल रहा है यार, 2.2% यील्ड है मेरा खाली। अब नाउ इफ दिस कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस 100% मनी इन ऑल स्टेक होल्डर्स, तो मेरे को 5.54 मिलता, मैं क्या बोलता? 2% मिला, अच्छा था ये। मैं सोचता 2010 में एफडी 9% दे रही है, या क्यों डालने का? लेकिन वो एफडी was static. This is not static. Here I am going to get the growth benefit of this company, that is equity. 2014 तक they gave me 0 dividend. Why? Because they were growing. यार पीयूष पटेल को 0 मिल रहा था तो प्रमोटर को कितना मिल रहा था? They were also getting 0, right? उनको भी तो कहाँ डिविडेंड मिल रहा था? Nobody were getting money, but yes, company said, let me keep money with me because we want to grow. और हम ग्रो होंगे, हम और रेस्टोरेंट खोलेंगे, कल तगड़ा पैसा कमाएंगे, थोड़ा वेट करो दोस्त। He said, okay.
We will wait with you. Today, earnings are 43 rupees. Yeah, from 2015 they started distributing dividend. मेरे को पैसा मिलने लगा हर साल. आज अर्निंग कितना हो गया मेरा? 43 रुपीज. मेरे को कितना मिल रहा है? 21% यील्ड. पीयूष पटेल के पास दो चॉइस थी उस समय. आई वुड पुट माई मनी इन एफडी. आई वुड बी गेटिंग टुडे ऑल्सो 7 to 8% return if that was a long-term FD. If I have put it in this company, today I am getting 21% per annum, and still there are chances that this 21% are going to grow. Equity. डील अच्छा था कि नहीं मेरे लिए? अच्छा डील था. एस्टीमेट. दोस्तों, इसी प्रकार से आई आस्क्ड द राइट क्वेश्चन टू माई सेल्फ. चलो, ये एसी कौन बनाता है? डालो पैसा. ये हाउसिंग फाइनेंस कौन करता है? डालो पैसा. बैंकिंग कौन करता है? डालो पैसा. टेक्नोलॉजी कौन देता है? डालो पैसा. जहां जहां हमें लगता है सेफ्टी ऑफ मार्जिन है, वो धंधा कर सकते हैं. वी यूज्ड टू इन्वेस्ट, एंड व्हाट वी थिंक, कंपनी के साथ हम भी बढ़ेंगे. इक्विटी. मेरा ये अनुमान है. See, when I invested in 2010, I was having estimate of 2020. Today in 2020, I am having estimate of 2030. आज मैं बेच दूं क्या वो कंपनी? If I will sell it, तो मेरे को एक वैल्यू मिलेगी. पर कल से मेरा 21% हर साल का जो मिलना है वो तो बंद हो जाएगा. What is my estimate? In 2030, I am going to get 360 rupees earning. 200 में निवेश, 360 रुपया मुझे हर साल मिलता है. इतना यील्ड हुआ. 180% yield every year. पीयूष पटेल was having a choice. मैंने एफडी में डाला 60%. That is not bad investment. 50% डालना ही चाहिए. सेफ्टी में वही काम लगने वाला है. But when you are comparing return, either equity, I got 180% per year. Right? This is my estimate of 2030. और मुझे कहाँ मिल सकता है? ये मुझे तब तक मिलता जाएगा till the time in India people are going to eat pizza. Got it? पता है आपको? अंदाज आ गया है कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ. So in the equity, profits distribution for lifelong. ये पेड़ जो है वो जिंदगी भर आम देने वाला है, मौसम्बी देने वाला है, लेमन देने वाला है. जैसे पेड़ लगाऊंगा वैसा मेरा यील्ड. तो अलग अलग पेड़ है, कोई ज्यादा देगा कोई कम देगा, लेकिन जिंदगी भर मिलेगा कि नहीं मिलेगा. That's the magic of equity. Ask right question to yourself. जब तक इंडिया में लोग अलग अलग प्रोडक्ट यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस इनकम ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर. जब डिविडेंड नहीं मिलता था, remember 2010 to 2014, I was not receiving any dividend. That was the storage. See, why our body stores energy? हमारा बॉडी भी तो ऐसा है. हम कितना खाते हैं, कितना कैलोरी यूज होता है, पर क्या रोज उतना कैलोरी बर्न होता है? नो. दूसरा कैलोरी किधर जाता है? स्टोरेज. ताकि जब जरूरत पड़े, जब पीछे कभी सांड दौड़े, तब मैं मेरी एनर्जी को यूज कर सकूं. जब शरीर बीमार हो जाए, जब कभी हम बीमार होते हैं, तो कहां से वो अचानक एनर्जी आ जाती है? दिस रिजर्व गेट ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी. वही एनर्जी, वही रिजर्व आपकी कंपनी में होते हैं. जब आपको जरूरत होती है तब वो रिजर्व काम लगते हैं. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ दिस रिजर्व इज यूजफुल. तो मत बोलो खाली डिविडेंड कितना मिल रहा है, खाली ये. एवरीथिंग गेट्स वैल्यू. हर चीज का यहाँ पे वैल्यू है. See, let me provide you a simple example. देखो, मैंने सिंपल करने का प्रयास किया है पूरे प्रेजेंटेशन को. हो सकता है मैं कामयाब हो सकता है ना भी हो, पर I have tried to get the message directly delivered in your mind. If you have invested 100 rupees, बेयर मार्केट में आप आए, कहां पे? बेयर मार्केट में. तो क्या? और बुल मार्केट में आए तो क्या? राइट? इफ यू आर इन बुल मार्केट, तेजी तेजी तेजी,
तो यहाँ पे उल्टा है दोस्तों। अगर आप इन्वेस्ट करते हो आपको मौके मिलेंगे। मैनी टाइम पीपल थिंक पीयूष भाई मौका नहीं मिलता है मेरे को, तो मैं तो तेजी में आया। देखो यार सीधी बात है ना, जब आप रैली में आते हो तो वो बेयर मार्केट जैसे तो भाव नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, तो बी प्रिपेयर। लेकिन आपने जब से अपना काम चालू किया यार, डेवलप कंट्री के मार्केटों को तो 100 साल होने को आए। दे आर सो ओल्ड। सो यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। Be prepared. In coming 3 years, you are going to have good opportunity to invest, and in coming 10 years, you are going to have very good opportunity to invest. ऐसे समय आएंगे, तब घबराने का नहीं। Right? What happens when people get good opportunity? They think, अरे डालू की नहीं। Right? मैंने पहले ही बताया, जब कंपनी को जरूरत होती है तब आप साथ में रहते हो, you get good yield. So if you enter into market during bear market, खराब समय में, तो आपको ये जो है ना 5% इतना यील्ड मिलता है। उल्टा दिखाया मैं, 5% यील्ड मिलती है। इफ यू कम टू मार्केट इन बुल्स व्हेन एवरीवन इज इंटरेस्टेड, जब हर जगह लड्डू बट रहे, तो आपको कम मिलेगा। 3% यील्ड होती है उस समय। राइट? लेकिन अगेन डोंट फॉरगेट, आपके लाइफ स्पान में आपको बहुत सी बार बाजार गिरेगा, ऐसे मौके मिलेंगे। वापस कह रहा हूं, हर 3 साल में एक मौका मिलेगा सस्ते लेने का। हर 10 साल में जबरदस्त सस्ते एकदम मुफ्त के भाव पे लेने के भी मौके मिलेंगे। इन मौके को लेना आज से तय कर दो। सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। सो इफ यू आर बाइंग एनीथिंग इन वर्स्ट टाइम, मतलब अच्छे समय पे ले रहे हो, देन योर यील्ड वुड बी लेस सर, क्योंकि शेयर महंगे होते हैं। देन व्हाट विल हैपन? You are having 3% yield today, लेकिन ये तो आज की बात है, आज महंगा लिया, your today's yield is only 3%. Right? How much FD is providing you? Today 7%. 5 साल लगेंगे एफडी तक पहुंचने में, तो ये मिनिमम 5 साल आप रखते हो। If you have invested in good growing company, your company is able to grow their profit by 15%, then your yield would be 6% in coming 5 years. तो एफडी जितने पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 5 ईयर। ज्यादातर लोगों को तो इंट्राडे करना है, उनको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। राइट? 10 साल 12% यील्ड पे पहुंचे, तो अगर मैं 10 साल रखता हूं तो मेरी क्या श्योरिटी होती है कि मेरे को 12% साल के मिलने वाले। टिल द टाइम पीपल आर गोइंग टू कंज्यूम एसी, पीपल आर गोइंग टू यूज साबु शैम्पू, यू आर गोइंग टू गेट दिस यील्ड। कितना? 12। एफडी कितना देने वाला था? फिक्स सिक्योरिटीज 6-7%, तो एटलीस्ट आप डबल आए। राइट? लेकिन अब आपको और 10 साल जब आप पैसा रखते हो, जस्ट थिंक अबाउट इट, 12 का 24 नहीं होता है, डायरेक्टली वी गेट 49% यील्ड। मतलब कि कंपाउंडिंग चालू हो जाता है। समय आता है जब आपको 100% यील्ड मिलती है। राइट? जितना आपने निवेश किया उतना हर साल मिलने को लगता है। राइट? एट द सिंगल ग्राफ 25 साल लगते हैं उस चीज को, लेकिन भूलना नहीं, ये हमने बुरे समय में जब आपने बाय किया हुआ है, मतलब तेजी में बाय कर रहे हो, तब ये यील्ड है। आपको मौके मिलने वाले अंतिम साल में, एक लिख लो डायरी में, बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। जब जब मौके मिले फायदे उठाते जाओ, योर यील्ड इज गोइंग टू इंक्रीज, तो आप जल्दी पहुंचोगे। राइट? दिस इज अ फ्लैट लाइन। इफ यू वांट टू टेक मोर अपॉर्चुनिटी, बाय ड्यूरिंग फॉल। अगर आपने इस बार फॉल में बाय किया है, अभी जो फॉल आया था 5% यील्ड मिलता है आपको, उस केस में आप 5 साल में ही एफडी से डबल पहुंच जाते हो, 10%। उस केस में आपने जितना डाला वहां पहुंचने में आपको कितना टाइम लगता है? 25 साल नहीं लगते, जल्दी पहुंच जाते हो। यहाँ पे भी अगेन एवरी 3 years you will get opportunity, every 10 years you will get opportunity. If you will take this opportunity, ये जो yield है ये इंप्रूव होती जाएगी। सिंपल की कॉम्प्लिकेटेड? बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। आपने जितना डाला है आपको हर साल पैसा मिलना चाहिए, हर साल। वो परसेंटेज इंक्रीज करना है तो कब डालना पड़ेगा? यू विल हैव टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग फॉल, टू ओनली प्रे फॉर फॉल।
Do not pray for rallies because majority of the people who are listening this video, you are making money even today. आप आज भी कमा रहे हो, तो SIP करते जाओ, जब जब मौके मिले पैसा डालो. Right? This is the way you can increase your yield. So ask right question. Till when people will use banking? कब तक बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे? क्या बैंक बंद होने वाली है? आपके पास बैंक है, क्या करेंगे बेच के? जब तक लोग बैंकिंग इस्तेमाल करेंगे, you are going to make money. Till when people will buy essential, till when companies will need technology, you are going to get money. This is equity. So what type of income does equity provides? First, it gives you regular income. ये जो नल है ना, वो चालू रहता है. कंपनी के वहां पे पाइपलाइन डाल दिया है आप लोगों ने, पैसा आता जाएगा हर महीना बैंक में. So first you are going to get regular income and second you are going to get appreciation. Why? Because companies in India distribute around 30% dividend. बाकी 70% किधर जाता है? They are putting with themselves. और वो पैसा वो लोग एक्सपांशन में यूज करते हैं. वो पैसा आपको भाव में दिखता है इन एप्रिसिएशन. तो जब कभी जरूरत हो सेल करके कमा सकते हैं, बट दैट शुड बी नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. ये नल तो चालू ही रहेगा ना, ये नल चालू रहना चाहिए. सो इक्विटी प्रोवाइड्स यू दिस बोथ टाइप ऑफ इनकम माय डियर फ्रेंड्स. अगर कोई भी एसेट्स मेरे पास है, वो बंद करके ही, इफ आई हैव टू बर्न द एसेट टू रीप द फ्रूट, देन दैट इज नॉट द राइट एसेट. लोग कहते हैं मैं क्या करूंगा 15 साल बाद. अरे कौन कहता है 15 साल बाद पैसा मिलेगा? पैसा तो हर साल से मिलना चालू हो जाता है. इस साल भी तो डिविडेंड आएगा, राइट? 5 साल में तो आप एफडी तक पहुंच जाते हो. तो क्यों? लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि 10 साल बाद ही पैसा मिलने वाला है. इन इक्विटी यू आर गोइंग टू गेट मनी फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, राइट? लेकिन अगर शेयर बेच के ही पैसे मिलते तो फिर शेयर भी अच्छी जगह नहीं होती. ऐसा थोड़ी ना है यहाँ पे, राइट? एनी टाइप ऑफ एसेट्स बेच के ही अगर आपको पैसा मिलने वाला है, मजा नहीं आएगा. मेरे को तो आज भी पैसा चाहिए, तो आज पैसा पर डिसीजन. सम कंपनीज प्रोवाइड मोर डिविडेंड, सम कंपनीज प्रोवाइड लेस डिसीजन. इट्स ऑल राइट फॉर मी, क्योंकि मुझे हो सकता है आज पैसा नहीं चाहिए. कम डिविडेंड देता है ना, जुबिलेंट मेरे को नहीं देता था, राइट? लेकिन फिर भी इट वॉज गुड. वाई? बिकॉज दे वर इन्वेस्टिंग, और इसीलिए आज अच्छा मिलता है, राइट? सम कंपनी टुडे आल्सो प्रोवाइड गुड डिविडेंड. क्यों? क्योंकि आज एक्सपांशन में पैसा नहीं चाहिए उनको. इट्स ऑल अबाउट दोज कंपनीज. लेकिन इट शुड बी सिंपल. मत सोचो कि पैसा सेल करके मिलेगा, सेल करके नहीं मिलेगा. पैसा जिंदगी भर मिलना चाहिए. So this was all about your assets. Hope I was able to make clear about your assets priorities. Think long, but don't think I am not going to get money this year. From day one, if you are investing in profit-making companies, your money is going to grow. What care you should take to earn good money? You should invest in growing economies. और भारत से अच्छा और कौन सा ग्रोइंग स्टेट कंट्री मिलेगा दोस्तों आपको? इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी. इमर्जिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में पैसा डालो. वहां पे पैसा मत डालो जो कंपनियों का धंधा ही नहीं बढ़ता है, जो इंडस्ट्रीज का पैसा ही नहीं बढ़ता है. इन्वेस्ट इन ग्रोइंग और डिमांडिंग इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज. गुड कंपनी माने जो झूठ नहीं बोलती है, जहां का मैनेजमेंट अच्छा है, जो कम डेप्थ से पैसा बढ़ाना जानती है. Got it? Hope I was able to deliver this message. Thank you so much. Best of luck. Jai Hind to everyone. जब हम मिलेंगे हर साल, every year your asset should be making you more money. Jai Hind.